जी ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। हाउ इज एवरीबॉडी? आई एम फाइन सर, आप सुनाएं। फाइन सर। गुड, गुड टू सी you all, but the strength of the class still very low. Why? सर शायद अभी सर कोई बच्चे पूछे ना हो सर, सो तक। चले, let's start our today's lecture. The topic is project crash. Crash is the very simple word. Everybody should understand what's the meaning of crash. Crash mean टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है जी। Whatever you want, you are doing a project and you are very worried about the project because the time is delay, the matter is going to be late, and you are too much worry about that project. So that is called crashing. Technically crashing कहते हैं, but if you become late to complete the project, you will say the product crashing. तो हाउ टू डील विद द क्रैशिंग सिनारियो? क्रैशिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? द डेफिनेशन ऑफ द क्रैशिंग जस्ट वी विल सी. The project crashing is the method for shortening the project duration, and you feel कि जी the duration is become going too late and how I will handle this project. अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो इंसान परेशान हो जाता है कि मैं अब ये 4 दिनों का काम 2 दिन में कैसे करूंगा या 2 हफ्ते का काम कैसे करूंगा. तो द प्रोजेक्ट इज क्रैशिंग इज द मेथड ऑफ शॉर्टनिंग द प्रोडक्ट ड्यूरेशन. आप यू फील द पर्सन फील दैट the project is going to be shortening by reducing the time of one or more critical activities to less than their normal time. Which time? Normal time in, if you have suppose you have 4 days to complete the project, but the you estimate and count the all kind of activities. You will say to the boss or to the general manager, I need 2 weeks. How you will complete the project within the 4 days? So you have the critical activities and you have the less than normal time. So that is called crashing. Crashing is achieved by devoting more resources. So if you want to complete 2 week project in 4 days, so you will require more resources. मुझे बंदे और दे दें, मुझे मशीनरी और दे दें, मैं इंशाल्लाह विद इन 4 days आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. तो क्रैश को डील करने के लिए आपको रिसोर्सेज मजीद चाहिए होंगे. Thus, the cost associated with the project is increased. Of course, cost will be boosted up because you need more resources, more human beings, more machinery, and you will pay more. So the project price should increase. The objective of the crashing is to reduce project duration. ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रोजेक्ट क्रैश कर गया है तो आपको उसको ड्यूरेशन को रिड्यूस करना है एट एनी कॉस्ट. क्योंकि अगर आप इन टाइम कमिटमेंट के मुताबिक चीज़ों को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपकी अपनी मोरालिटी ख़राब होगी और नेक्स्ट टाइम द पर्सन द टीम्स पब्लिक विल नॉट डील यू. वो आपको एंड द पब्लिक विल नॉट कंसिडर यू कि यार ये तो डिले करके प्रोजेक्ट देता है. सो more resources required. The objective is reduce project duration while minimizing cost of crashing. Of course, you have to see as well your cost. आपको कॉस्ट को भी देखना है क्योंकि कॉस्ट इतनी हाई हो गई देन द पब्लिक एंड द टीम द अदर पार्टीज विल नॉट कंसिडर यू एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर, यार वो पैसे, वो उसको प्रोजेक्ट दोगे यार वो पैसे बहुत ले लेगा, लगा देगा, वो कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर देगा. तो क्रैशिंग हो जाना इज ए वेरी वीक पॉइंट टू एनी प्रोजेक्ट इंजीनियर और फॉर एनी प्रोजेक्ट मैनेजर. मतलब जरूर होना चाहिए पढ़ने पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीड स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू शुड not consider to crashing. You will always consider to complete your work at the given time.
then you will not face the crashing criteria in your project. Project crashing refers to the process of shortening the duration of the project by crashing the duration of a number of activities. ठीक है जी. In a single project, suppose you start a project and you start a lot of activities in the project. चीजें खरीदो, फैसले करो, बंदे ड्यूटीज पर लगाओ, लोडिंग अनलोडिंग करो, ठीक है जी, असेंबलिंग करो, वेल्डिंग करो, वट एवर, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व to complete that kind of project. So the crashing the duration of number of activities. अब उसने कहा जी by crashing the duration of number of activities. अब अगर आपकी जो एक्टिविटीज ये क्रैश कर जाएं तो फिर आपका प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन वो भी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने एक प्रोसेस था जो आपने 2 दिन में कंप्लीट करना था ऑल एक्टिविटीज के थ्रू. अगर एक्टिविटीज ही क्रैश कर जाएं तो आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट ही क्रैश कर जाता है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटी से ही सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं. Since it generally results in increase of the overall project cost, right? The increase of overall project cost. Of course, if you face the project crashing scenario, the overall project cost will be increased. The challenge faced by the project manager is to identify the activities to crash. अब जो project manager है उसको तमाम those activities which clarify or identify that these are the activities are going to be performed as a क्रैश एक्टिविटीज. अब कुछ सारी एक्टिविटीज तो नहीं होती लेकिन कुछ करती. अब कुछ क्यों होती हैं? बंदों ने काम करना था, बंदे नहीं आए. बंदों ने काम करना था, बारिश हो गई. बंदों ने काम करना था, कोई शटरिंग गिर गई. बंदों ने काम करना था, मटेरियल मार्केट से नहीं मिला. लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड द सीन कि एक्टिविटीज क्रैश क्यों कर जाती हैं. अब इसी को मैनेज करना, इसी को बार बार लुक आफ्टर करना, फॉलो करना और फॉलो करना, देन आप एक्टिविटीज क्रैश से बच जाते हैं. तो आपको सबसे पहले एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर आइडेंटिफाई करना है कि विच एक्टिविटीज आर क्रॉसिंग टू द क्रैश एक्टिविटीज and the duration reduction for each activity such that the project crashing is done by the least expensive manner possible. जो भी एक्टिविटीज आपकी क्रैश की हैं आप उनको लीस्ट एक्सपेंसिव मैनर में आपने देखना है, कम अज कम खर्चे में मैं इसको ये जो क्रैश की हुई एक्टिविटीज हैं इनको कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है एंड यू आल्सो वांट एज कॉस्ट सेव एज वेल. आपको कॉस्ट भी सेव करनी है. यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इंडस्ट्री के अंदर. व्हेन यू विल ज्वाइन फॉर अ जॉब, द जनरल मैनेजर या जो इमीडिएट बॉस विल गिव यू द फर्स्ट असाइनमेंट. तो आप उसको बड़ा टारगेट लेके करते हैं, मैं इंशाल्लाह आई विल डू माई सेल्फ एंड आई विल कंप्लीट माई दिस असाइनमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम और विद इन द स्पेसिफिक कॉस्ट. तो अगर तो आप पहले दिन पहली असाइनमेंट जो बॉस ने दी है छोटी प्रोजेक्ट 6 घंटे का काम है, चलें जी 6 घंटे में कंप्लीट करें. तो अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 6 घंटे के बजाय 12 घंटे चला जाता है, आप अगले दिन में चले जाते हैं और कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है, तो बॉस को एक इंटीमेशन चली जाएगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बंदा कुछ थोड़ा सा ढीला है. तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट करने से ही आप सीखेंगे. एक छोटी सी असाइनमेंट भी एक स्मॉल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है जी. जैसे घर में कोई बच्ची है तो उसको कह देना आज हमारी बेटी जनाब जी रोटी बना के दिखाएगी, ठीक है जी. तो अगर वो रोटी सही गोल बन गई और सही पक गई तो हम कहते हैं वेरी गुड, यू डिड वेरी वेल एंड यू डिड योर गुड असाइनमेंट, आपने ये बड़ी अच्छी असाइनमेंट की है. बट अगर वो गोल नहीं है और कच्ची रह गई है तो मदर उसको मजीद गाइड करेगी कि नहीं अभी काम खराब है, अभी इसको और ट्रेनिंग की जरूरत है. तो इसी तरह बॉस भी आपको ऐसे असाइनमेंट नहीं देगा, वो देखेगा कि जी ही इज नाउ केपेबल टू डू द जॉब, देन ही विल गिव यू द प्रॉपर असाइनमेंट और द स्मॉल प्रोजेक्ट. सो द 2 point, that is duration of your project, your duration of your assignment and your cost of your assignment or your cost of your uh, small project or long project, whatever. So don't think about the project crashing. आपने अपने आप को you save
इन एट एनी कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट क्रैशिंग। अगर प्रोजेक्ट क्रैश कर गया, असाइनमेंट क्रैश कर गई, तो आपकी जो रिप्यूट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है जी, वो कहेंगे जी बच्चा अभी ठीक नहीं हुआ या बच्चे को अभी और टाइम चाहिए। तो टू सेव योर प्रोजेक्ट्स क्रैशिंग एंड टू सेव योर रिप्यूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी बेस पर फिर आपको सारा साल काम दिए जाते हैं छोटे छोटे, और इसी बेस पर देखते हुए आपकी इंक्रीमेंट लगती है। और अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो देन यू विल गेट ए गुड इंक्रीमेंट, आप अच्छे पैसे कमाएंगे, आप जल्दी गाड़ी खरीद लेंगे, 2-3 सालों में खरीद लेंगे। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपकी इंक्रीमेंट कम लगेगी, देन 5 साल भी नई गाड़ी खरीदने में लगता होता ना, कहते मैं अपने पैसों से नई चीज खरीदूंगा, घर बनाऊंगा और प्लॉट खरीदूंगा, तो 10 साल का अरसा लग जाता है इंसान को प्लॉट खरीदते हुए, शादी करते हुए और गाड़ियां बनाते हुए। तो अगर, क्योंकि प्रोजेक्ट क्रैश करना ही आपकी रिप्यूट को खराब कर देगा। तो टू लेकिन क्रैश एज ए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस चीज को देखना है कि जी प्रोजेक्ट क्रैश में इस फेज में ना एंटर हूं। It is a common in project management that additional resources are used to either speed up some activities to get the project back on schedule or reduce the project completion time. अगर आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग से वास्ता पड़ भी जाए तो आपको ये जज करना है कि हाउ मच एडिशनल रिसोर्सेज आई नीड एंड आई विल यूज दीज एडिशनल रिसोर्सेज एंड स्पीड अप माय ऑल एक्टिविटीज टू गेट बैक द प्रोजेक्ट बैक। मीन कि आप ऑन द शेड्यूल, जितो भी शेड्यूल के मुताबिक प्रोजेक्ट चलना चाहिए उस तरह आप बैक वापस आ जाएंगे। एंड रिड्यूस द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और फिर आप अपना कम अज कम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जे में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो इफ यू फेस कि जी प्रोजेक्ट क्रैश शुरू हो गया है, तो इमीडिएटली इसको पकड़ लें और उसको रिड्यूस करने के लिए उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करें जिन पर काम होना है। अगर आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए तो यू कैन रिक्वेस्ट टू द बॉस, यू कैन रिक्वेस्ट टू द कंपनी कि जी आई नीड मोर रिसोर्सेज टू बूस्ट अप माय वर्क एंड रिड्यूस माय द completion time. Crashing on activities refers to the speeding or shortening of education. अब crashing an activity refers to the speeding or shortening of education of an activity by using additional resources. आपने अपनी क्रशिंग एक्टिविटी को स्पीड अप करने के लिए, या जो आपकी एक, आप कहते हैं मेरी शायद एजुकेशन शायद थोड़ी सी कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया, तो आपको एक एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब एडिशनल रिसोर्सेज बंदों के भी हो सकते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज स्टाफ की हायरिंग के भी हो सकते हैं। नीचे लिखे हुए हैं दीज इंक्लूड ओवर टाइम, आप कहें जी मुझे ओवर टाइम दे दें, मुझे कोई टेम्परेरी स्टाफ दे दें, मुझे कोई किराए में कोई चीज लेके एफिशिएंट इक्विपमेंट, रेंटिंग मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट, मुझे ऐसा कोई इक्विपमेंट ले दें रेंट से जिससे मैं जल्दी ये काम कर लूं। और कोई दूसरे अदर मेजर्स, मुझे कोई ट्रेनिंग दिलवा दें जिसकी वजह से मेरी कोई एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। तो जस्ट यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट क्रैश, आपका जो प्रोजेक्ट क्रैश हुआ उसको सेव करना चाहते हैं, एंड सेव योर लाइफ एंड टू सेव योर रिप्यूट कि जी मुझे कोई बाद में डिस्टर्ब ना करे। The crasher time refers to the shortest possible time to complete an activity with the additional resources. ये बात हो चुकी है। The crashing cost refers to the activity cost under the crashing activity time. What did he say? They say the crashing cost. अब जो crashing cost आ रही है, यानी आपकी एक्टिविटीज जो आइडेंटिफाई आपने की है कि मुझे मजीद कॉस्ट चाहिए अपने प्रोजेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को इन टाइम खत्म करने के लिए, दैट इज द एक्टिविटी कॉस्ट। तो जारी बात है, कोई जो आप एक्टिविटी करेंगे एडिशनल जो रिसोर्सेज यूज करेंगे तो आपकी उस एक्टिविटी की कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। और इस एक्टिविटी कॉस्ट को इंक्रीज क्यों करती है? ड्यू टू क्रैशिंग कॉस्ट। दिस रिलेशनशिप इज assumed to be a linear, hence for each activity of crash cost per period that is equal to per period cash cost minus normal cost divided by normal time minus crash time. अब आपने निकालना है कि मुझे 10 दिन के लिए कुछ एडिशनल काम करना है, ठीक, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ सामान चाहिए जिसकी वजह से मेरा जो
एक्स्ट्रा टाइम में लग रहा है, उसको क्रैश को रिड्यूस करना है, तो उस क्रैश की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? उस पर पीरियड को, जो भी पर पीरियड है, 2 दिन का है, 10 दिन का है, वट एवर, 8 दिन का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, उसको निकालने का तरीका है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। वैसे नॉर्मल कितनी थी और क्रैश कॉस्ट कितनी थी, ठीक है ना? नॉर्मल कॉस्ट सपोज 100 रुपया थी, तो क्रैश कॉस्ट सपोज 200 रुपया हो गई। आपने अंदाजा लगाया कि मुझे कुछ चीजें एडिशनल खरीदनी है, तो ऑब्वियसली क्रैश कॉस्ट ज्यादा होगी, डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। यानी आपका नॉर्मल टाइम कितना था, सपोज जी उसने 2 घंटे में कंप्लीट होना था, बट क्रैश टाइम बढ़ गया। क्रैश टाइम जो होता है वो आप एडिशनल टाइम होता है जी, मुझे घंटा और चाहिए, तो आप क्रैश कॉस्ट को नॉर्मल कॉस्ट से माइनस करेंगे और फिर नॉर्मल टाइम को उस क्रैश टाइम से निकाल देंगे डिवाइड करके, तो आपके पास क्रैश कॉस्ट आ जाएगी टोटल उस पर पीरियड के लिए जो आपको चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। The cost of crash per period assumes that the relationship between adding more money to the activity and reduce the time is linear. What did it say? कि अगर आप एक्टिविटी के टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये 4 दिन का काम मजीद 2 दिन करो, तो आपको कास्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, आप ये समझते हैं कि मेरे पास ये टाइम की ड्यूरेशन को फेस करना मुश्किल है, मैं इस प्रोजेक्ट को या इस असाइनमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करना चाहता हूं, तो मुझे बेशक पैसे थोड़े से ज्यादा भी दे दें, मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगा। तो कहते हैं ना कि 2 बंदे काम कर रहे हैं और वो एक ब्रिक से दीवार बना रहे हैं, उसको कहते हैं जी 4 बंदे ले लो, दीवार 2 घंटे में खड़ी कर दो, 6 बंदे ले लो, दीवार 1 घंटे में खड़ी कर दो। तो जारी बात है जब 6 बंदे लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगी। तो सो इट सेज द कॉस्ट ऑफ क्रैश पर पीरियड अज्यूम दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एडिंग मोर मनी टू द एक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग द टाइम इज लीनियर, ठीक है? आप एक्टिविटी में अगर मजीद टाइम लगाते जाएंगे तो रिड्यूस टाइम होता जाएगा। स्पेंड हाफ ऑफ द मनी एंड गेट हाफ ऑफ द रिडक्शन। अगर आप आधा पैसा लगाएंगे तो आधी रिडक्शन होगी। स्पेंड मोर मनी एंड गेट मोर टाइम रिडक्शन। अगर आप मजीद जितना भी स्पेंड करेंगे, डैश का मतलब है कम लगाएं या मोर लगाएं। स्पेंड डैश ऑफ द मनी मीन कि आप मोर भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं, थोड़े से ज्यादा भी लगा सकते हैं और ज्यादा लगा सकते हैं और ज्यादा लगा सकते हैं। तो इसलिए डैश लिखा है कि इट डिपेंड्स कि जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ही उसमें टाइम रिडक्शन होगी। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन प्रैक्टिस। अब ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। कि अब देखना, मैं कहता हूँ जी ये एक मजदूर और एक मिस्त्री लगा दो तो जी सारा दिन में वो दीवार खड़ी कर देंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा जी सारा दिन से मुराद है जी 8 घंटे में। मैं कहता हूँ यार 2 मजदूर ले लो और 2 मिस्त्री ले लो, तो 4 घंटे में खड़ा कर दो, ठीक है जी, खड़ी कर देंगे। अच्छा अगर आप 4 मिस्त्री दे दें और 4 ही मजदूर दे दें, मेसन्स और दूसरा जो है आपका वर्कर जो साथ होता है, क्या कहते हैं उसको, लेबर, तो 4 वो मेसन दे दें, 4 ही लेबर दे दें, तो क्या वो 2 घंटे में और फिर 1 घंटे में, अगर मैं कहूँ जी 16 ले लो और 16 ही, क्या वो 10 मिनट में द्वार खड़ी कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये इतना पैसा जया नहीं कर देना कि आप वो प्रैक्टिस में ना आए और काम भी ना हो सके। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज ट्रू इन प्रैक्टिस के मजीद पैसे से पैसा लगाई जाओ, बंदा लगाई जाओ, कॉस्ट लगाई जाओ और वो काम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक खास लिमिट तक ही आपको पैसा लगाने की इजाजत होती है और एक खास लिमिट तक ही आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं यार अब आप सबको ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब जैसे दीवार की मैंने आपको मिसाल दी है कि जी आप 50 बंदे लगा दें, क्या वो 1 मिनट में दीवार खड़ी कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ईंटें लगेंगी तो दीवार खड़ी होगी, तो 1 मिनट में तो नहीं 50 बंदे खड़े कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ये सोचना है कि मैं मैक्सिमम कितना बंदा लगाऊं और मिनिमम टाइम में वो काम खत्म हो जाए। बट वर्क ऑल राइट फॉर ए रफ प्लानिंग टेक्निक। अब ये रफ प्लानिंग कुछ टेक्निक्स होती हैं। अच्छा यार सिंपल, अब एक जैसे एक पाइप की वेल्डिंग हो रही है, आप कहते हैं 2 वेल्डर लगा दो, 3 वेल्डर लगा दो, तो अब 3 की बजाय 5 तो नहीं लगा सकते ना, ठीक है ना? तो मैक्सिमम आप जरूर रफ एक आइडिया टेक्निक यूज कर सकते हैं कि जी चले 2 की बजाय 4 दे दें और 5 दे दें, लेकिन
5 के बाद 10 लगा देंगे तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि सारे अगर जुड़ जाएंगे तो फिर वो तो काम नहीं होगा ना। तो एक रफ टेक्निक के साथ उसको लेके चलना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी द जनरल रिलेशनशिप ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट। द क्रैशिंग कॉस्ट इंक्रीज एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिक्रीजेस। व्हाट डिड से कि क्रैशिंग कॉस्ट जो है इंक्रीज करती है जब आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो डिक्रीज करे। यानी आप कहते हैं जी मैंने वैसे नॉर्मल मेरी कॉस्ट चल रही है और अगर मैं 1 हफ्ते में काम खत्म कर दूं, मालिक कहता नहीं जी 1 हफ्ते का काम खत्म करने की बजाय आप 2 दिन में जल्दी से खत्म करके दें मुझे फौरन इमीडिएटली, तो इट मीन्स आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो जो जनरल रिलेशनशिप होगा टाइम एंड कॉस्ट का, तो अगर आप क्रैशिंग कॉस्ट को मजीद इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ड्यूरेशन और डिक्रीज होता जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज एज प्रोडक्शन ड्यूरेशन इंक्रीजेज। अगर अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ये है कि जी एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो है कि जो आपकी, जैसे आप एक कोई मटेरियल बना रहे हैं, कोई सीमेंट बना रहे हैं, तो सीमेंट की जो कंटेंट्स हैं उसमें वो फलां केमिकल भी चाहिए, फलां पाउडर भी चाहिए, फलां चीज़ें चाहिए, आपने उसको ग्राइंड किया और सीमेंट तैयार कर दिया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि उसके साथ आपने बंदे लगाए हुए हैं, आपकी मशीनरी चल रही है, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, ठीक है, वो दीज इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो कुछ काम जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो उस, मतलब एक पाइप खरीदना है आपने, वेल्डिंग करनी है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने उसको वेल्ड करना है, आपको वेल्डर चाहिए, आपको वेल्डिंग प्लांट चाहिए, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो अगर आप प्रोडक्शन ड्यूरेशन जो आप काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कहते हैं मेरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, यानी जहाँ आप 1 घंटे में 2 पाइप वेल्डिंग कर रहे थे, अब आई नीड 3 or 4 more pipe welding, I need two, instead of 2 welding I want to increase my welding capacity from 2 pipe to 4 or 5 pipes, कि मुझे अब 5 की कैपेसिटी से आप इसको इंक्रीज करके दें। तो ऑब्वियसली आपको बंदे चाहिए होंगे, आपको मजीद वेल्डिंग प्लांट चाहिए होंगे, तो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी तो मटेरियल तो वो आपके पास आ गया, जो आपके पास है, जो आपने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। ठीक है, उस पर तो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं इंक्रीज करेगी। पाइप तो 10 ही हैं जो आपने जोड़ने हैं, जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। तो अगर आप उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन की ड्यूरेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं कि मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन में सारे पाइप जोड़ लूं, तो इट मीन्स आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन कि जो आपने लेबर लगाई है, जो आपने जो वेल्डिंग प्लांट दिए हुए हैं, वो आपको थोड़ा सा बढ़ाने पड़ेंगे। ओके जी, रिड्यूस प्रोजेक्ट लेंथ एज लॉन्ग एज क्रैशिंग कॉस्ट आर लेस देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये भी वही चीज है कि अगर आप प्रोजेक्ट की लेंथ को, यानी प्रोजेक्ट की लेंथ से मुराद 6 दिन का प्रोजेक्ट है, 10 दिन का प्रोजेक्ट है, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं ये 6 दिन का काम 4 दिन में करना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू कंप्लीट 4 days वर्क इंस्टेड ऑफ 10 days वर्क, एंड आई विल कंप्लीट 2 days वर्क इंस्टेड ऑफ 1 day वर्क, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, तो आपको एज लॉन्ग एज क्रैशिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब कितनी कर सकते हैं, जितना आप प्रोजेक्ट को मजीद कम से कम आप गए महीने की बजाय 15 दिन करें, नहीं जी 15 दिन की बजाय 5 दिन में करें, नहीं जी 5 दिन की बजाय 2 दिन में करें, तो ऑब्वियसली जो क्रैशिंग कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, एंड और लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे कि वो जो आपके लेबरों की, अगर आपने ज्यादा लेबर लगा दी हैं या दो उतने ही लेबर हैं, उनको थोड़ा सा ओवर टाइम दे के काम को रिड्यूस कर लिया है, तो पहले आपने 10 दिन में काम करना था, 10 दिन के वेजेस देने थे, तो अब आप 2 दिन में 2 दिन की वेजेस देंगे, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी। तो रिड्यूस कई दफा करने से आपकी कॉस्ट कई दफा रिड्यूस भी हो जाती है। The objective of the crashing was to reduce the scheduled completion time to re-app the result of the project sooner. The objective of the crashing was to reduce. अब अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि मैंने क्रैशिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, अपने प्रोजेक्ट को जो मेरा क्रैश आया हुआ है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहता हूँ,
तो आपको जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम है उसको थोड़ा सा रीऐप करना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द सूनर ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए और उसके रिजल्ट सामने आ जाए। अब शेड्यूल कंप्लीशन टाइम से मुराद ये है कि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अदरवाइज, क्योंकि क्रैशिंग का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आपने जो शेड्यूल टाइम है उसको बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक है जी। However, there may be other reasons for reducing project time, और भी कोई और रीजन भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको क्रैशिंग का सामना करना पड़ सकता है। जी सैलाब आ गया, बंदे बीमार हो गए, जैसे आजकल जी कोरोना आ गया जी, लोगों को ज़्यादा कोरोना वायरस हो गया इसलिए लेबर नहीं मिल रही जी, या लेबर डर रही है काम करने से क्योंकि जी कोरोना हो जाएगा, लेबर बाहर नहीं आ रही। देयर आर द डिफरेंट रीजंस। ठीक है जी। तो देयर कई भी हो सकती हैं। देयर आर आल्सो मे बी ए डायरेक्ट फाइनेंशियल पेनल्टीज। अब आपको कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी भी हो सकती है, यानी पैसा ही खत्म हो गया, आप कहते हैं ओहो ये तो काम खराब हो गया, मैं बाकी चीजें कैसे कंप्लीट करूंगा, तो प्रोजेक्ट क्रैश में चला जाता है। तो फाइनेंशियल पेनल्टीज मीन कि आपके पास क्रैश फाइनेंशियल शॉर्टेज आ गई है, एंड हाउ टू फेस टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फॉर नॉट कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो आप फिर पैसा ना मिलने की वजह से भी कई दफ़ा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता। कई दफ़ा मालिक अवेलेबल नहीं होता जिसने चेक साइन करके आपको पैसे देने होते हैं, बैंक बंद होते हैं, कोई बैंक की छुट्टी होती है, कोई हड़ताल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है और फिर आप कहते हैं जी अब मैं 3 दिन बाद आऊंगा, मैं तो फलां रावलपिंडी बैठा हूँ, साहिवाल में प्रोजेक्ट चल रहा था, या रहीमिया खां में प्रोजेक्ट चल रहा है, वो साहिवाल में बैठा हुआ है। तो इट्स ए वेरी डिफिकल्टी, क्योंकि वहां से फोन करके बैंकिंग पैसा तो नहीं देगी, बैंक ने तो यही कहना है कि जी चेक दो और पैसे ले लो। तो किसी भी वजह से और अदर बातें की जा रही हैं कि प्रोजेक्ट क्रैश और किस किस वजह से हो सकता है। बहरहाल ये अब आपको देखना है। ये कुछ जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, एक रास्ता है, द क्रिटिकल पाथ इज 1 2 3, कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो 11 हफ्तों में होना है। ठीक है जी। एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, पहले से दूसरा जो काम होना है, अगर आप माउस को मेरे देख रहे हैं तो वो 5 दिनों में होना है, और दूसरे से जो तीसरा काम होना है, यानी एक आपने काम किया पहला और फिर दूसरा काम शुरू किया और तीसरा काम कंप्लीट हुआ तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब पहले से जो दूसरा काम है वो 5 दिनों में होना है, और दूसरे से जो तीसरा काम होना है वो 6 दिनों में होना है। ये इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। ये मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह होपफुली के 7 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो हम कॉलेज में इसको सीख लेंगे। जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, जो हम कॉलेज में फिजिकली अगर कर लेंगे तो हमारी और मेरी और आपकी ये लक होगी कि हम इसको फिजिकली अटेंड कर लेंगे, क्योंकि ये टोटली मैथमेटिकल पोर्शन वाला हिस्सा है, एंड ऑनलाइन में इसको अक्सर नहीं समझ आती। लास्ट सेमेस्टर में जो मैंने 2018 के बच्चों को पढ़ाया था, उन्होंने तकरीबन कुछ 6 7 एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन मेरे से ली, तन जाके वो उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि नेटवर्किंग क्या होती है। तो अगर फिजिकली मौका मिल जाएगा तो इंशाल्लाह इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे। अब ये उसने कहा है कि आपने ये प्रोजेक्ट 11 हफ्तों में कंप्लीट करना है, क्योंकि पहला से दूसरा काम में 5 दिन लगते हैं और दूसरे से तीसरे काम में 6 दिन लगते हैं, तो टोटल कितने दिन लगते हैं? 11 वीक्स लग रहे हैं। तो अब वो कहता है जी अगर मैं डायरेक्ट 1 से 3 चला जाऊं, डायरेक्ट 1 से 3 चला जाऊं तो उसको 5 हफ्ते लगते हैं, लेकिन काम 11 दिनों की बजाय अगर मैं 5 दिनों में कर लूं तो नाउ हाउ मेनी डेज कैन वी क्रैश इट, हम कम अज कम कितने दिनों में क्रैश, आपको 6 वीक क्रैश के मिल जाएंगे। तो अब अगर ये इट डिपेंड्स करता है कि ये कौन सी एक्टिविटी है, कि 1 से 2 कौन सा काम एक्टिविटी है, मतलब कोई पाइप वेल्डिंग कर रहे हैं या पाइप की लोडिंग हो रही है, दूसरे से तीसरा आप कहते हैं कि मैंने पाइप की वेल्डिंग स्टार्ट करनी है, तो पाइप लोड होंगे तो मैं दूसरे से तीसरा वेल्डिंग स्टार्ट करूंगा। तो अब 1 से 3 जो है आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी को, आप ना अपने वेल्डर अरेंज करते हैं, आप ना अपने वेल्डिंग प्लांट अरेंज करते हैं, आप कहते हैं मैं बाहर से पाइप की वेल्डिंग करा देता हूँ, वो कहता है जी मैं 5 दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगा। अपने बंदे जो हैं वो 11
वीक्स में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 1 से 2 एक्टिविटी का मतलब कि आपके लोडिंग हुई, पाइप खरीद के ले आए, पैसे मिले, पाइप खरीद के लाए, फिर आपने वेल्डिंग स्टार्ट करवा दी, उन्होंने 6 दिन लिए, तो आप पूरे का पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट उठा के बाहर दे देते हैं कि जी मैं 11 बाहर वाली पार्टी कहती है जी आई विल कंप्लीट दिस प्रोडक्ट इन 5 वीक्स इंस्टेड ऑफ 11 वीक्स, कि मैं 11 वीक्स की बजाय सर 5 दिन में आपको 5 वीक्स में कंप्लीट करके दे दूंगा। तो फिर आप जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो 1 से 3 डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है जी। तो वो आप पूछ रहे हैं कि जी आपने फिर कितना क्रैश होने से बचा लिया, वो कहते हैं जी हमने ऑलमोस्ट 6 वीक्स को सेव कर लिया। तो ये अब पॉजिटिव क्रैश है क्योंकि आपने 6 दिन बचा लिए। कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही इसमें कुछ डिस्कशन मैंने करना था। काफी बातें मैंने क्रैशिंग कर ली हैं। 2 मिनट रह गए, मैं अटेंडेंस लगा लूँ, आप सब लोग चैटिंग में अपनी अटेंडेंस दे दें और कैमरा ऑन करके थोड़ी सी मैं ताकि प्रिंट स्क्रीन कर लूँ। इमीडिएटली कैमरा ऑन करें, मैं अटेंडेंस ले लूँ।